أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلے ہم 3 آیات کو سن لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آگے إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اوکے، 3 آیات ہیں. اس سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ دیکھ لیتے ہیں a little background about the surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے what is the name of the surah? Surah Al-Munafiqun. So what is this صیغہ Al-Munafiqun? منفقہ صیغہ بتائیے. لائک root words تو نون فا اور قاف ہے, but what is the صیغہ of it? It's Rafa is Yes, Rafa ism, and in the plural una ending, we know it is the plural ending, and then it is Rafa ism. Now what is the background of the surah? کسی کو اس کا background پتہ ہے تو آپ شیئر کیجئے, ورنہ پھر میں بتاتی ہوں. اوکے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے جب آپ پر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ 13 سال تک مکے میں ہی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. بٹ کیا ہوا کہ بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا, اور بہت کم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک رول ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو ایک نعمت سے نوازتا ہے, یہ تو سب سے بڑی نعمت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں بھیجا. لوگوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا. تو پھر یہ ہمیشہ سنت ہوتی ہے, اور ایون ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اسلام کی قدر نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ کو ابینڈن کر دیتے ہیں اور اسلام کا کام اور اسلام کی جو مدد ہے اس کے لیے کسی دوسری قوم کو چن لیتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ مدینے والوں کو اسلام کے کام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے چن لیا. تو اس وقت کیا بیک گراؤنڈ تھا مدینہ منورہ میں؟ ایکچولی وہاں پر 5 جو ہے وہ قبیلے تھے. لائک اوریجنلی مدینے کے لوگ کون تھے؟ اوریجنلی مدینے کے لوگ جو تھے وہ وہی تھے, آئیڈل ورشپرز تھے. آئیڈل ورشپرز کے وہاں پر 2 قبیلے تھے, قبیلہ اوس اور دوسرا کون سا قبیلہ تھا؟ قبیلہ خزرج. یہ آئیڈل ورشپرز یا مشرکین کے قبیلے تھے. اس کے علاوہ یہود کے 3 قبیلے تھے جو کہ وہاں پر تھے, اور یہودیوں کو پہلے سے پتا تھا کہ جو آخری رسول ہیں ان کے نزول کا, ان کے آنے کا جو زمانہ ہے وہ قریب آ چکا ہے, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ مدینے کی جو سرزمین ہے آپ کا نزول یہیں پر ہوگا. کیسے پتا تھا؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورسز میں اتنا کلیئرلی مینشن کیا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نشانیوں کے بارے میں، ایون یہ بھی بتایا تھا کہ زمانہ نزول کون سا ہوگا اور آپ پھر کہاں پر سیٹل ہوں گے. تو انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول قریب ہے اور آپ مدینے کی سرزمین میں ہی جو ہے وہ آپ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے. تو وہ یہاں پر آ گئے تھے. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے, بٹ فرام ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ دے کیم اینڈ دے سیٹلڈ ان مدینہ ویٹنگ فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہود کے یہاں پر 3 قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. So this was actually the setup. اب مکے میں کیا, جو یہ عرب ٹرائبس تھے, عرب ٹرائبس کا اوریجنلی کیا ہوتا تھا, ان کے لیڈرز ہوتے تھے, ان کے کوئی بادشاہ نہیں ہوتے تھے. تو لیڈرز جو تھے وہ اپنی جو قبیلہ ہوتا تھا اس کی جو ہے وہ اس کو دیکھتے تھے اور ان کو سپورٹ کرتے تھے. اچھا, لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ مدینے کے لوگوں نے, اوس اور خزرج نے مل کر سوچا کہ جیسے رومنز میں بادشاہ ہوتے ہیں اور جیسے جو پرشین امپائر ہے ان کے بادشاہ ہوتے ہیں, تو ہم بھی جو ہے اپنا ایک بادشاہ چنیں. تو جو قبیلہ اوس تھا وہ تھوڑا چھوٹا قبیلہ تھا, اس کے کمپیریٹیولی جو قبیلہ خزرج تھا وہ کافی بڑا قبیلہ تھا. تو قبیلہ خزرج میں سے ایک شخص کو انہوں نے بادشاہ بنانے کا پورا پلان فائنلائز کر لیا, یہاں تک کہ جو ہے وہ اس کی جو تخت نشینی تھی کہ وہ تخت پہ بیٹھے گا اور اسے تاج پہنایا جائے گا. تو the date was also decided کہ اس دن ایسا ہوگا. اب وہ شخص کون تھا, کسی کو پتا ہے وہ شخص کون تھا جس کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنائیں گے؟ عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی, رائٹ. تو یہ عبداللہ بن ابی which was later on, وہ بادشاہ نہیں بن سکا تو پھر وہ لیڈر آف دا منافقون بن گیا. تو ابھی میں اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہوں. تو اس کے لیے ڈیسائیڈڈ تھا کہ وہ یہاں کا جو ہے وہ بادشاہ بنے گا. اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بننے سے پہلے, کچھ دن پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیج دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو آپ کیا ہوا کہ وہ بے تاج بادشاہ بن گئے, اور عبداللہ بن ابی کا جو پلان تھا بادشاہ بننے کا, وہ اس کا پلان جو ہے وہ فیل ہو گیا obviously. and every one of us can understand کہ آپ کا اگر ایسا کسی کا پلان ہو کہ میں بادشاہ بنوں گا اور وہ بادشاہ نہ بن سکے, تو then that person will become very angry and اس کے دل میں بہت اینوموسٹی آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن بن گیا, اور اس کے گروپ میں اور بھی لوگ تھے, all of them were منافق. اچھا, اب ہم دیکھ لیتے ہیں that who is a منافق. اگر آپ سے کوئی کویشچن پوچھے who is a منافق, so what will you answer? ٹو فیسڈ پرسن, جو اوپر سے کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو, ظاہری اور باطنی اس کا الگ ہو. ہاں, آج کل ہم منافق اسی کو کہتے ہیں, بٹ لٹرلی اگر ہم, سسٹر آشنا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ آج کل جس طرح ہم یوز کرتے ہیں منافق ورڈ کو, اس کی طرح ہم ٹو فیسڈ کرتے ہیں, بٹ لٹرل اگر ہم میننگ دیکھیں اس زمانے کے حساب سے, تو منافق وہ انسان تھا اس زمانے میں کہ جس نے اپیرنٹلی اسلام کو قبول کر لیا تھا, اپنی زبان سے وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, اور وہ زبان سے کلمہ پڑھتا تھا, مگر اس کے دل نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا. They just want to be included in the group of Muslims. ٹھیک ہے, تو یہ منافق وہ لوگ تھے کہ جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, مگر ان کے دل جو تھے نا وہ مسلمان نہیں تھے. اچھا, اب اس کا ورڈ جو ہے وہ منافق کا مطلب لٹرل میننگ کیا ہے؟ تو روٹ ورڈز کون بتا رہا تھا؟ سسٹر ندرت شاید اس کے روٹ ورڈز ہمیں بتا رہی تھی کہ اس کے کیا روٹ ورڈز ہیں منافق کے. نون فا قاف. نون فا قاف اس کے روٹ ورڈ ہے. تو نفقہ لٹرلی بولتے ہیں ایک ٹنل کو. یہ پکچر, دس از اے ٹنل. اب اس ٹنل میں دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں اوپننگ کلیئر نظر آ رہی ہے نا, اور ایک اوپننگ یہاں پر بھی ہے, آلموسٹ اوپننگ, اس کے اوپر تھوڑی سی کیا مٹی لگی ہوئی ہے. تو یہ دس از اے پریئر ڈاگ, اٹس کائنڈ آف اے ریبٹ, اینڈ ڈاگ, ریبٹ اور ڈاگ کے درمیانی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کا ٹنل بناتا ہے, اس ٹنل کو نفقہ کہتے ہیں. نفقہ تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک طرف تو اس کی کلیئر اوپننگ ہوتی ہے,
جہاں سے اندر جا سکتا ہے اور باہر اندر آنا اور باہر جانا کر سکتا ہے. بٹ یہ ایک یہاں پہ ایک ہڈن اوپننگ سیکرٹ اوپننگ بناتا ہے کہ جب اگر کوئی دشمن کوئی سانپ وغیرہ یہاں سے انٹر ہو جائے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ بھاگ جائے گا. تو منافق بھی اسی طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا, تو اس لیے اس کا نام منافق رکھ دیا. اس منافق کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا کہ بظاہر تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور منہ سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں, بٹ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی آتے تھے اور مسلمانوں سے ان کی باتیں اور ان کے سیکرٹس کو جانتے تھے. اینڈ دین ان کے جو سیکرٹ ٹائز تھے وہ یہودیوں کے ساتھ بھی تھے. تو ان کو لگتا تھا کہ کبھی مسلمان جو ہے وہ جیتیں گے, ان کو فائدہ ہوگا, یا جنگوں میں اگر کو مال غنیمت وغیرہ ملے گا تو دین وی ول بیکم امنگ دیم, ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے کبھی دیکھا کہ جو قریش والے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو اٹیک کیا, وہ جیت گئے, یا یہودی جو ہے وہ غالب ہو گئے, سو دین وی ہیو اندر اوپننگ, ہم اب باہر نکل سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ان سے کہیں گے کہ ہم تو مسلمانوں کو صرف مذاق سے ایسے کہہ رہے تھے کہ ہم we were just trying to make up, اور ہم صرف ان کو تو زبانی کہتے تھے مگر دراصل ہم ان کے ساتھ نہیں تھے, ہم آپ کے ساتھ تھے. تو انہوں نے اپنے لیے دو راستے کھلے رکھے تھے, مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا بھی اور یہودیوں کے ساتھ ہونے کا بھی, اسی لیے ان کو منافق کہا گیا. اب انیشلی کیا ہوا, منافقوں کو یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیشلی جیسے ہی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو فوراً جو ہے وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا, ایسا تو نہیں ہوا. ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سیٹل ہونے میں اور اسلام کو آہستہ آہستہ غالب آنے میں تو کچھ وقت لگا. تو منافقوں نے کب اسلام قبول کیا, جب جنگ بدر ہوئی, اور جنگ بدر میں کیا ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کلیئر وکٹری مسلمانوں کو دی کہ ان کے پاس نہ تو سر و سامان تھا نہ کچھ تھا, اس کے باوجود ان کو اتنی اچھی طرح سے اور اتنی امیزنگ وکٹری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ غالب آ رہے ہیں تو پھر ان کا یہ پلان ہوا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا کہ چلو زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اور جب ان کو کوئی فائدہ ہوگا تو ہم کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب یہ کسی مشکل میں ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم تو یہودیوں کے ساتھ ہیں, تو پھر ہم یہودیوں کے ساتھ مل جائیں گے. سو یہ اس کے لٹرل میننگ ہے منافق کے. اوکے, اب یہ ایک حدیث ہے, یہ حدیث بہت شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہو, یا انگلش میں یا اردو میں. یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی کیا نشانیاں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, آیت المنافقی ثلاثۃ, کہ منافق کی کتنی 3 نشانیاں ہیں. اب وہ 3 نشانیاں کیا ہے, یہ نمبر 1, اذا حدث کذب, کہ جب وہ بات کرتا ہے, حدث بات کرتا ہے, when he speaks, کذب جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ جو جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. نمبر 2, وَإِذَا وَعَدَ اخلفا, جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, وعدے کو پورا نہیں کرتا. نمبر 2. اور نمبر 3 کیا ہے, وَإِذَا تُمِنَ خَانَ, اور جب اس سے امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. تو اب کویسچن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافق تھے, کیا آج کے زمانے میں منافق ہیں؟ جی اچھا, سب کو لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی منافق ہیں؟ مے بی اس کیٹیگری کے منافق نہیں ہے, مگر ٹو سم ایکسٹینٹ اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں, جیسے ہم اپیرنٹلی ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر ہمارا دماغ میں کیا کیا خیالات گھوم رہے ہیں, تو وہ ویری لیس ڈگری. ہاں بالکل, ایک نفاق اکبر ہوتا ہے اور ایک نفاق اصغر ہوتا ہے, جو آپ کہہ رہی کیٹیگریز, تو وہ والی کیٹیگری آج نہیں ہے, کیونکہ آج جو ہے وہ اسلام غالب نہیں ہے.
اور کسی کو اپیرنٹلی مسلمان بن کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا. اس وقت تو ان کو فائدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ پھر ان کو مال غنیمت بھی ملتا تھا، اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا بھی سکتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے. بٹ آج کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے کیونکہ اسلام غالب نہیں ہے تو اس کو کوئی اپیرنٹ فائدہ نہیں ہوگا. تو وی ڈونٹ ہیو منافق آف دیٹ کیلیبر. نفاق اکبر والے لوگ آج کے زمانے میں نہیں ہیں. بٹ جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ خرابیاں تو ہمارے اندر ہی ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں. کبھی نہ کبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن ہم سب کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت جھوٹ بول ہی دیتے ہیں، ہے نا. وعدہ کرتے ہیں تو وی آر ناٹ سو کیئرفل اباؤٹ دا پرومسز دیٹ وی ہیو میڈ. اینڈ دین امانتوں کا خیر اتنا وہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی امانت کرتا ہے تو دے رکھواتا ہے تو پھر ہم اس امانت میں اتنی خیانت نہیں کرتے. اور امانت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف جو ہے وہ کوئی مٹیریل تھنگ بھی ہو. اس آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو کسی کی بات یا کسی کا سیکرٹ، if someone has trusted us with a secret، تو پھر ہم کیا اس کو اسی طرح سے حفاظت سے رکھتے ہیں. اور اگر ہم نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اگر یہ تینوں میں سے کوئی بھی کوالٹی ہمارے اندر ہے جو کہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نفاق کے قریب ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے ہم بچیں. تو الحمدللہ دس واز دا بیک گراؤنڈ آف دا سورہ. اب ہم کیا کریں گے، میں نے جیسے کہا تھا کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اٹیمپٹ بھی کیا الحمدللہ. اس کے اعراب کریں گے ہم. اعراب کرنے کا مطلب کہ گرامیٹیکل انالیسس کریں گے اینڈ دین وی ول ٹرائی ٹو ٹرانسلیٹ اٹ آور سیلف، اور پھر جو ٹرانسلیشن ہے اس سے ہم میچ کر کے دیکھیں گے. تو آیا نمبر 1 کا میں نے اس کو پارٹس میں کر دیا. لائک ایک آیا ہوتی ہے تو ایک آیت کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک سینٹینس، ایک آیت کے اندر ملٹیپل سینٹینسز بھی ہو سکتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت جو ہے اٹس ناٹ ایون ون سینٹینس، اٹس جسٹ اے پارٹ آف دا سینٹینس. تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں گے. ابھی یہ جو صورت ہے اس میں اٹس اے سمپل سورہ، لائک ہمارے لیول کے لیے، بگنر لیول کے لیے. اور اس میں ایک آیت کے اندر 3-4 سینٹینسز ہیں، تو ان کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 1 کا فرسٹ پارٹ کون کرے گا؟ اذا جاءک المنافقون. میں کروں ساتھ؟ جی کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ. اذا کسی کو پتہ نہیں ہے، اذا میں مر کرواتی ہوں. اذا مینز when، اور اس کو we just wait for now we will say اس کا ٹرانسلیشن ہوگا when، جب. اور یہ ایک ورڈ ہے، we say it is the ظرفیہ. It tells the time. تو ظرف زمان ہے یہ. زمان مطلب the ظرف of time. ٹھیک ہے. اب یہاں سے بتائیے جاءک المنافقون. جاءک would be fail. ٹھیک ہے. جاء fail. ٹھیک ہے. کا کون سا would be fail ہوا. پاسٹ ٹینس ہے یا پریزنٹ ٹینس ہے؟ past tense. ٹھیک ہے. یہ فعل ماضی ہو گیا، پاسٹ ٹینس ہو گیا. اوکے. اور And ka is file of the ja. اٹیچ پروناؤن تو کبھی بھی فائل نہیں بنتا. Sorry, maf'ul. This is the maf'ul. Attached pronoun is always the maf'ul. So ka is the maf'ul for it. ٹھیک ہے. یہ لکھ لیتی ہوں یہاں پہ. اور what is المنافقون؟ المنافقون is مفعول به. اسٹیٹس کیا ہے اس کا؟ رفع ہے، نصب ہے کہ جر ہے؟ جر. جر تو بالکل بھی نہیں. ابھی تو ہم نے کیا منافقون. اونا اینڈنگ از ناٹ جر. واٹ از دا اونا اینڈنگ؟ نصب. کون ہیلپ کرے گا ان کو؟ مسلم چارٹ میں ہم دیکھتے ہیں نا، مسلم چارٹ میں مسلمون رفع میں آتا ہے. یہ رفع اسم ہے. دس از دا رفع اسم. ابھی ہم نے جب سورۃ المنافقون کیا تھا تو میں نے وربلی بتایا تھا، لکھا نہیں تھا. سو المنافقون از دا اسم ان دا رفع اسٹیٹس. واٹ ول اٹ بیکم ان دا سینٹینس؟ فاعل of جاء.
फाइल बनेगा, ठीक है, ये फाइल हो गया, ओके, आउटसाइड फाइल, आउटसाइड फाइल हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो इदा जा अकल मुनाफिकून, दिस इज वन सेंटेंस, और इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इदा कौन ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा? जब तुम्हारे पास आए मुनाफिक, हाँ बिल्कुल, जब आपके पास आते हैं मुनाफिक, यानी कि का की ज़मीर, अक्सर ऐसा होता है का की ज़मीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फरमा रहे हैं कि जब आपके पास मुनाफिक आते हैं। क़ालू, अच्छा नेक्स्ट वन कौन करेगा? इसको मैं डिलीट कर देती हूँ जी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लीजिएगा, बट ऑब्वियसली हमें डिलीट मैं करूँ उस्ताजा? आपका कोई भी कर ले, कोई भी करता जाए, सिंपल है ये, इसलिए मैं कह रही थी अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते तो फिर इसको हमें जल्दी आसानी होती। जी जी आप कीजिए। जी, आलू नसरू से है, तो ये का सीगा है कि वो सब ने कहा, पास्ट टेंस, उन सब ने कहा। बिल्कुल ठीक है, पास्ट टेंस। नशहदू, इसको मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा फेल एंड इज द पास्ट टेंस मादिल, और इसका फाइल इसके अंदर वाव से हमें पता चला कि वो है क्या, फाइल क्या है, फाइल बताइए, होम, ठीक है, फाइल हो गया होम, सही है, ओके। अब एक फेल कॉलू था, ठीक है, एज सून एज मैंने आपसे कहा था कि एज सून एज वी सी के एक और फेल है तो फिर वहां से न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर हमारा न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा क्योंकि हमने दूसरा फेल देख लिया। जी अब बताइए, नशहदू। नशहदू क्योंकि अनीता से स्टार्ट हो रहा है, फेल मुदारे है। नशहदू नहनु का है ना, हम शहादत देते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल हम गवाही देते हैं या हम शहादत देते हैं। सो दिस इज मुज़ारे, द प्रेजेंट टेंस एंड द फाइल इज नहनु, नून से पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताजा, जी ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे दूसरा फेल है? अभी मैंने बताया बेटा कि जैसे ही कोई फेल हमें सेंटेंस में नजर आता है, the moment we see another fail, that will start another sentence. ओके, ठीक है, अभी उस दिन भी हमने ये चीजों को डिस्कस किया था कि कैसे हमें पता चलेगा न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो जुमला फेलिया में के लिए जहां भी हम नया फेल देखेंगे वहां से नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। और जुमला इस्मिया के लिए भी हमने कुछ बातें कही थी, अभी देखते हैं कि क्या कहा था। जी सिस्टर मदिया, इन्नका लरसूलुल्लाह, इन्नका हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट है, तो मुझे लगता है ये जुमला इस्मिया। साजा मैं एक सवाल कर रही थी। जी जी बिल्कुल करें, बिल्कुल सही कह रही है सिस्टर मदीहा, ये हर्फ ऑफ नसब है तो ये बन जाएगा, जुमला इसमें स्टार्ट करेगा और ये मुब्तदा हो जाएगा। सिस्टर मायरा आप पूछिए। जी जो इब्राहिम सवाल कर रहे थे वो हमें इसके मीनिंग से हम गेस कर रहे हैं ना कि ये शहादत से ये वर्ड है इसलिए फेल है, यानी हमें जो नहीं पूछ रहे नहीं, थे इस तरह से इब्राहिम। नहीं, नो नो नो, हमने प्रेजेंट टेंस अच्छा और अच्छा पास्ट टेंस किए हुए हैं ना, अच्छा नसरा ठीक है, से ओके, यंसुरु, यंसुरु इस से वजह क्या से है, गॉट इट, ठीक नंसुरु, है सो नंसुरु से ये नशहदु है, नून बिगनिंग और शीन हादा इसके रूट वर्ड्स है, ठीक है। इस तरह से हमें पता चला। अच्छा इब्राहिम थे तो ऑब्वियसली इब्राहिम तो लास्ट वीक नहीं थे, तो इब्राहिम को नहीं पता कि हमें कैसे स्टार्ट करना। ओके इब्राहिम तो आप देख लीजिए, आमना है आज हमारे साथ? जी मैं हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ कि अब जुमला इस्मिया हमें कैसे पता चलता है कि जुमला इस्मिया स्टार्ट होगा। यही एक बात तो आ गई, जैसे हर्फ ऑफ नसब होगा तो और उसका इसम तो जुमला इस्मिया स्टार्ट होगा। इसी तरह से अगर हम कोई इंडिपेंडेंट प्रोनाउन देखेंगे वहां से जुमला इस्मिया स्टार्ट होगा, और अगर हम कोई पॉइंटर वर्ड विच इज नॉट फॉलोड बाय अलिफ लाम तो वहां से भी दोबारा जुमला इस्मिया स्टार्ट होगा। तो ये दो तीन चीजें थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। चले, इन्ना का हर्फ ऑफ नसब और का इसका इसम है, टुगेदर दे विल मेक द मुब्तदा ऑफ द जुमला इस्मिया। आगे बताइए सिस्टर मदीहा। लरसूलुल्लाह ही, ये लाम ज़बर ल जो है ये हर्फ ऑफ जर नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो रसूल है वो रफा स्टेटस है, तो ये लाम जो है ये एम्फेसिस वाला लाम है। और रसूलुल्लाही जो है वो इदाफा फ्रैगमेंट है, क्योंकि रसूल लाइट है, नो अलिफ लाम, अल्लाही वर्ड इसमें जलाल है, जर स्टेटस, और क्योंकि ये रफा से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये खबर हो गया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मुब्तदा हो गया और ये खबर हो गई, तो ये जुमला इसमें अब बन गया। ठीक है, अब
ये बन गया यहाँ तक, सॉरी ये बन गया जुमला इस्मिया। अब जुमला इस्मिया को हम पीछे वाले फेल से कनेक्ट करेंगे। पीछे वाला फेल क्या था? नशहदू था ना। अब ये जुमला इस्मिया नशहदू के लिए क्या बनेगा? फाइल नहीं, फाइल तो उसमें है ना नाहनु, ठीक तो ये है, मफूल ही फेल हुआ हमें फिर तो। नजर, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमने देखा नशहदू को इससे पीछे गए, इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जुमला इस्मिया जो था, ये इसको हमने देख लिया कि हमारे पास फेल था और हमारे पास फाइल था, तो अब मफूल भी नहीं है, तो अब ये बन जाएगा इसके लिए मफूल। ठीक है, जो ये सेंटेंस था, जो जुमला इस्मिया इन्नका लरसूलुल्लाह, ये पूरा सेंटेंस नशहदू के लिए क्या बन गया? मफूल बन गया। अब ये फेल और फाइल और मफूल तीनों एक साथ मिल गए, नशहदू को हमने एक साथ कनेक्ट किया, और ये क्या है? जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया? जुमला फेलियर बिकॉज इट्स Failure. स्टार्टिंग विद अ फेल। बिल्कुल सही, ये जुमला फेलिया है। अब इस जुमला फेलियर को पीछे वाले कौलू से कनेक्ट करेंगे। पीछे Another वाले jumla कौलू, failure. हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हमारे पास फेल था और हमारे पास फाइल था। अब ये जुमला फेलिया, इसको जुमला फेलिया नंबर 2 क्या बनेगा जुमला फेलिया नंबर 1 के लिए? मफूल मफूल बनेगा। जी हाँ, फिर से मफूल बनेगा। ऑलवेज ये क्या है? ये कोट्स है ना, कोट्स को अरबिक में कहते हैं मफूल अल कौल। ये कोट्स हैं, तो कोट्स हमेशा क्या बनते हैं? वो मफूल बनते हैं। मफूल ठीक है, भी यहाँ हम तक, कहेंगे, हाँ क्या मफूल कहा, भी, क्या जी जी शहादत। जी जी जी, ये भी मफूल भी ही है और ये भी मफूल भी ही था। यहाँ तक समझ आ गया? सिंपल है यहाँ तक, है ना? किसी जो लास्ट टाइम आए थे उनके लिए आसान है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसी तरह की प्रैक्टिस की थी। तो ओके, कौलू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते थे जी वो कहते थे हम शहादत देते हैं या हम गवाही देते हैं कि जी बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। बिल्कुल ठीक। कौलू यानी कि वो मुनाफिक, नशहदु वो लोग कहते थे, क्या कहते थे? नशहदु हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह बेशक। अच्छा, अब इसमें क्या है? डबल एम्फेसिस है। इन्ना पे एम्फेसिस आ रहा है, हमें पता है, इन्ना इंडीड। एंड दूसरा एम्फेसिस किधर नजर आ रहा है हमें? लाम। लाम पे डबल एम्फेसिस है। बहुत ज्यादा ताकीद के साथ कहते थे आपकी खिदमत में आकर। ये अब्दुल्ला बिन उबई जो है ये करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात करते थे तो खड़ा हो जाता था और कहता था, लोगों ध्यान से सुनो कि ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। मगर उनके लिए, अच्छा हम बाद में देखते हैं, तो मगर ऑब्वियसली वो सिर्फ जबान से ही कहता था, वो दिल से तो नहीं कहता था। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? जी कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इज़ा जा अकल मुनाफिकून, जब मुनाफिकून आपके पास आते हैं, कौलू वो कहते हैं, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं बेशक आप ही अल्लाह के रसूल हैं। अब थर्ड पार्ट वो करते हैं। इब्राहिम जरा पूछ रहा है कि एम्फेसिस क्या होता है। तो एम्फेसिस आई थिंक यही होता है कि बहुत दूर से कोई बात जोर से बात, शोर से यस कहना, यस ताकि एग्जैक्टली, वो दूसरा वाला आपकी बात को बिलीव करे। राइट, ठीक है। कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसको हम लाइक उर्दू में और इंग्लिश में शायद हमारे पास इतने ज्यादा टूल्स ऑफ एम्फेसिस नहीं है, मगर अरबिक एक ज्यादा फसी लाइक एलोक्वेंट लैंग्वेज है, तो इसमें टूल्स ऑफ एम्फेसिस है कि इस बात को सिंपल नॉर्मल कह ले, या जब वो इम्पोर्टेंट बात होती है या अगले वाले को ज्यादा इम्पोर्टेंस के साथ सुनाना जो है वो हम चाहते हैं, तो फिर हम उसमें टूल्स ऑफ एम्फेसिस को यूज करते हैं कि देखो ये दिस इज सो इम्पोर्टेंट। कभी कभार ऐसा भी होता है, हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या होता है कि हमारी टोन, हम किसी चीज को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो हम जनरली उसको एम्फेसाइज करते हैं बाय चेंजिंग द टोन ऑफ द वॉइस। तो अरेबिक में क्या होता है कि टूल्स ऑफ एम्फेसिस होते हैं कि जिससे पता चलता है कि ओके दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड द एम्फेसिस इज गिविंग टू दिस थिंग। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब तीसरी बात क्या हो रही है? वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। कोई भी कर ले जल्दी से इसको हम थोड़ा सा
कोई बोल तो रहा है लेकिन मुझे बहुत आवाज क्लियर नहीं आ रही. जस्ट मम्बल्ड अप. सिस्टर रास्ता आप कर लीजिए. वल्लाहु वाव तो एंड है. ठीक है, वाव को हम कर देते. ओके, जब वाव आएगा, ये 2-3 चीजें बता देती हूँ. जब वाव आएगा और सुम्मा आएगा और फा आएगा, इसके अलावा भी अगर कुछ आएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, ये हरफे कनेक्टर्स हैं तो इनको हम बोलेंगे हरफे अतफ. एन तो फा द कनेक्टर. ओके, अब लफ्ज़ जलाला को कैसे मार्क करूँ? रफा इसम है तो वो क्या स्टार्ट होगा? जुमला फेलिया नहीं, No. इसम है ना. इसम है जुमला हाँ. इसमिया होगा. जुमला इसमिया स्टार्ट होगा और ये लफ्ज़ जलाला जुमला इसमिया के लिए क्या बनेगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुमला इसमिया है. पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया. मुब्तदा. ठीक है, मुब्तदा बनेगा. फर्स्ट पार्ट ऑफ जुमला इसमिया इज मुब्तदा. मुब्तदा Okay. सही है. अब यालमु हम देख रहे हैं. अभी मैंने इब्राहिम को क्या बताया? एज सून एज वी सी एनी यालमु इज अ फेल. या से स्टार्ट हो रहा है और आइन लाम मीम इसके रूट वर्ड्स हैं. तो जैसे ही हम कोई फेल को देखेंगे हमें क्या पता चलेगा? जुमला फेलिया स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, इसको हम एक दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ से जुमला फेलिया स्टार्ट हो रहा है. अब यालमु को कैसे लेबल करेंगे? कौन सा पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस होगा. प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, ये फेल मुज़ारे प्रेजेंट टेंस है. और इसका फाइल कौन होगा? इसका फाइल अल्लाहु लफ्ज़ जलाला होगा. नहीं, पीछे नहीं हो सकता वो. और आगे होगा. और अगर नहीं नजर आएगा हमें कुछ तो फिर हम क्या कहेंगे कि हम इनसाइड फाइल इनसाइड फाइल होगा. इनसाइड फाइल कौन सा? इनसाइड फाइल कौन सा प्रोनाउन? नसरू यालमु. हाँ, नसरू यनसुरू की तरह है. आप अंदर से कौन सा प्रोनाउन निकालेंगी? एक मिनट. कोई बात नहीं, कोई भी बता दें. हुआ. हुआ. जी हाँ, हुआ. जी जी जी. यनसुरू यालमु की तरह, यालमु यनसुरू की तरह इसमें से हुआ फाइल निकलेगा. ठीक है. ओके, अब इन्नका लरसूल. इन्ना तो हर्फ वो है ना. सॉरी, मैं बिल्कुल. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए. इन्ना का अभी बताया सिस्टर मदीना ने क्या है? हर्फ ऑफ जर है ना. नसब एंड इद इसम. चलिए कोई बात नहीं, जितना आ रहा है आप कीजिए, बाकी मैं आपको बताती जाती हूँ. हर्फ ऑफ नसब और का इसका इसम है. तो अभी मैंने इब्राहिम को बताया कि जहां भी हम देखेंगे हर्फ ऑफ नसब, जुमला इस्मिया के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ. आप भी लास्ट वीक नहीं थी. जुमला इस्मिया हम कहाँ न्यू स्टार्ट करेंगे? जहाँ पे हम देखेंगे हर्फ ऑफ नसब को, न्यू जुमला इस्मिया स्टार्ट होगा. या जहाँ पर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन को, वहाँ पे हमारा न्यू जुमला इसमें स्टार्ट होगा. और थर्ड चीज हम देखेंगे कि जहाँ पर भी पॉइंटर वर्ड आएगा, पॉइंटर वर्ड विदाउट द अलिफ लाम, सो फॉलोड विदाउट अलिफ लाम, तो फिर वहां से भी हम जुमला इसमें स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्ना का इज द हर्फ ऑफ नसब. तो यहाँ से हम अपना दूसरा थर्ड एक्चुअली सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे. अब इन्ना का क्या बनेगा? इन्ना का मुब्तदा. ठीक है, दोबारा से ये मुब्तदा बन गया दूसरे सेंटेंस के लिए. लरसूलुहु. ला एम्फसिस के लिए यहाँ पे भी. अगेन ला वही वाला है, एम्फसिस के लिए है. ओके, व्हाट इज रसूलुहु? रसूलु. रसूलु और हु, इसके बीच में कोई कनेक्शन है? मुझे नाम भूल गया उसका. वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई और बता देगा. रसूलु इज फ्रैगमेंट होता है ना. जी हाँ, इदाफा फ्रैगमेंट है. इजाफा रसूलु इज फ्रैगमेंट. इदाफ एग्जैक्टली.
एंड वो इजाफा कर इसको मुदाफ इलैह, ठीक है, तो ये मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके खबर बन जाएंगे और ये बन जाएगा जुमला इस्मिया, ठीक है। अब जुमला इस्मिया को, ये जुमला इस्मिया, इसको यहाँ से कर लेते हैं, इस जुमला इस्मिया को कनेक्ट करते हैं पीछे वाले वर्ड से। कौन सा वर्ड है? यालमू। जी, तो ये यालमू के लिए क्या बनेगा जुमला इस्मिया? यालमू फाइल वो जानता है, फाइल नहीं होगा, फाइल तो हम हुआ ऑलरेडी निकाल चुके हैं। खबर देखिए एक फाइल होता है, जब फाइल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाँ मफूल भी बनेगा, बिल्कुल जी, मफूल भी बनेगा, मफूल भी बनेगा। ये हम या अलमू वो जानता है, इन्ना का लरसूल, बेशक के आप उसके रसूल हैं। तो वो क्या जानता है? इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट, तो ये मफूल भी बन रहा है, ठीक है। ओके, अब दोबारा क्या करते हैं, ये पूरे सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं अल्लाह से। ये वाला जो पूरा सेंटेंस था, इसको दिस होल सेंटेंस, ये क्या था? जुमला फेलिया था ना? फेलिया। जुमला फेलिया इसके लिए क्या बनेगा लफ्ज़ अल्लाह के लिए? मफूल भी नहीं, लफ्ज़ अल्लाह हमने क्या कहा? ये देखिए मुब्तदा, मुब्तदा, तो ये इसके लिए क्या बनेगा? मुब्तदा खबर, खबर बनेगा। मुब्तदा था ना, जुमला इसमें में मुब्तदा और खबर होते हैं, तो ये मुब्तदा था और ये खबर बन जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग बाद में खुद भी कर लीजिएगा इसको करने की, और नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ओके, तो इसकी ट्रांसलेशन बताइए। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। और अल्लाह यअलमु वो जानता है, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। इन्नका आप, बेशक आप, लरसूलुहु उसके रसूल हैं। एक और दफा बोल देती हूँ, वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो जानता है, इन्ना का बेशक के आप, लरसूलुहु उसके रसूल हैं। यानी मुनाफिकों को बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। जी कौन करेगा? अल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून। ताज़ा मैं ट्राई करके देखूं? जी जी, कोई भी कर ले जिसको लग रहा है कि आपको करना है, कोई भी कर ले। वो ये तो सलमान से भी करवाऊंगी नेक्स्ट वन। जी वो तो आपने भी ऊपर एक अरबिक वर्ड बताया था, मैं भूल गई इसका जो कनेक्टर। हाँ जी जी मैं बता रही हूँ, आप कनेक्टर भूलिए, मैं लिख रही हूँ फिर अल्लाहु जो है ये रफा स्टेटस में है, और ये इस्म है, तो ये स्टार्टिंग ऑफ जुमला इस्मिया हो जाएगा, मुब्तदा हो जाएगा। फिर यहाँ इसके आगे हमने देखा यशहदु, ये फेल है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ जुमला फेलिया, एंड सिंस इट इज स्टार्टिंग विद एन अनीता लेटर, दैट मींस इट्स गोइंग टू बी अ प्रेजेंट टेंस। और मेरे ख्याल में ये हुआ फॉर्म में है, यानी कि ही विटनेसेस या कुछ इस तरह का। जी जी, ही विटनेसेस या वो गवाही देता है। अच्छा, फिर इसके बाद दोबारा से स्टार्ट होगा ब्रैकेट, क्योंकि इन्ना जो है वो हर्फ ऑफ नसब है, जिसका मतलब ये होगा कि ये स्टार्टिंग अनदर जुमला इस्मिया, अनदर ब्रैकेट हियर, इन्नल मुनाफिकीन, ये हर्फ ऑफ नसब हो गया। मुनाफिकीना, ये ईना जो है, इफ यू रेफर टू द मुस्लिम चार्ट, तो ये शायद नसब या जर शायद होता है मेरे ख्याल में, बट बिकॉज ऑफ इन्ना इट्स गोइंग टू बी अ नसब। ठीक है ठीक है, ये हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट बन गया इन्ना, और इसका इस्म, तो ये हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट सेंटेंस के लिए क्या बनेगा? मुब्तदा, मुब्तदा बनेगा, ठीक है, ये मुब्तदा बन गया। अच्छा, लकाज़िबूना, तो ऊना जो है वो अगेन इफ वी रेफर टू मुस्लिम चार्ट, ये ऊना जो है ये रफा था, तो रफा से
आई थिंक खबर होगा ये खबर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रीन ब्रैकेट बंद हो जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द इनरमोस्ट सेंटेंस। ठीक है। अब ये जो इनरमोस्ट सेंटेंस है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये जो है जुमला फेलिया का मेरे ख्याल में बन जाएगा मफऊल, शायद। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फेल और फाइल था, तो अब ये इसके लिए बन जाएगा मफूल बिही। ठीक है, मफूल बिही का मतलब कि व्हाट, इट आंसर्स द क्वेश्चन ठीक है, या शदू, व्हाट क्या डज उन्होंने क्या अल्लाह विटनेस सुब्हानहू व तआला विटनेस, किस चीज का विटनेस है या किस चीज की गवाही देते हैं, तो वो इस चीज की गवाही देते हैं कि बेशक मुनाफिकून जो है, मुनाफिकीन जो है वो कौन है, वो झूठे, लकाज़िबून झूठे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अब कनेक्ट करें बैक। आगे। तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये पूरा जुमला इस्मिया का नहीं, पहले ये कौन सा जुमला बना, ये पूरा जी, ब्लू वाला जो है ये पूरा जुमला फेलिया बन गया, ये जुमला जुमला फेलिया। फेलिया बन गया। ठीक है, ये जुमला फेलिया बन गया, और ये था, हमने कहा था ये मुब्तदा है, और ये हमने कहा था कि ये अदफ है। जी, तो ये मुब्तदा के लिए क्या बना, जुमला फेलिया। जी उस्ताज़ा, ये आपका तो खबर या मुताल्लिक बिल खबर, तो हाँ, इसमें हाउ विल यू मुताल्लिक बिल आइडेंटिफाई? खबर तो सिर्फ आई जार थिंक मजरूर खबर होगा। होगा बिकॉज़ इट्स अ हाँ, कंप्लीट सेंटेंस। जी हाँ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, ये इसकी खबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको और दोबारा से कनेक्ट कर दिया। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, बेशक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाही देते हैं, कि क्या गवाही देते हैं, कि बेशक मुनाफिक कौन है, वो झूठे हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अच्छा अब हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी जो है वो आयत नंबर 1 को हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको झूठा क्यों कह रहे हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि जब आपके पास यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाफिकीन आते थे, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, और वो कहते थे क्या, कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप ही अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप जानते हैं कि आप बेशक आप उसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात की गवाही देते हैं कि बेशक मुनाफिकीन झूठे हैं। अब इनको झूठा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो दिल से नहीं कहते थे ये बात, इसलिए। जी बिल्कुल, कि शहादत का मतलब होता है, जब हम किसी चीज की शहादत देते हैं ना, तो हम जब हमारे दिल को यकीन होता है तो हम उस बात की शहादत देते हैं, मगर इनके दिल इस बात के गवाह नहीं थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि अगर इनके दिल इस बात के गवाह होते तो फिर वो आप पर सच्चा ईमान लाते और आपकी इत्तिबा करते, आपके हुक्म को मानते और आपके खिलाफ नहीं जाते। तो ये लोग, क्योंकि शहादत का मतलब समझ आ गया सबको, कि दिल से पहले जिस चीज को आपके दिल ने एक्सेप्ट किया है उसको आप अपनी जबान से कहते हैं, तो वो शहादत होगी। अब ये कह रहे हैं क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, तो वो तो शहादत नहीं दे रहे, क्योंकि इनके दिलों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल की हैसियत से। ठीक है, ये आयत नंबर 1 हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। We try to do 3 ayahs, like 2 और 3 छोटी हैं, बट हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन कौन करेगा? तो शहादत एक्चुअली आप दिल की बात को ज़बान से बयान करें, वो शहादत होती है। बिल्कुल, जी जी जी, लिटरल मीनिंग जो शहादत के हैं वो यही है कि पहले जो आप जिस चीज पे आपका दिल मुतमईन हो गया, अब उस चीज को आपने जबान से कहा, तो वो शहादत। सिस्टर समिया, जी इसको जी, शहादत में हम 2 चीज काउंट नहीं करेंगे कि पहली बात तो दिल से और फिर दूसरी बात कि प्रैक्टिकली उसके एक्शन से भी पता चल रहा हो हमें कि जो वो कह रहा है वो सच कह रहा है। लिटरल अगर मीनिंग देखेंगे ना तो फिर उसमें एक्शंस नहीं काउंट करेंगे, बस दिल ने उसके लिए अच्छा, वो कर ली। बट ऑब्वियसली अब आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकती हैं, बट मैं तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 देख कर आती हूँ, तो उसमें लिटरल मीनिंग्स जो मैंने इसमें लिखे ना, यही वर्ड यही आ रहा है। चले, मुफ़रदातुल अच्छा, कुरान भी एक तफसीर है मेरे पास, उस पे मैंने चेक किया है। शहादत का मतलब यही है कि जिस बात को दिल ने एक्सेप्ट कर लिया उसको फिर जो है वो जबान से
कहा तो फिर वो शहादत हो जाए। आयत नंबर 2 देख लेते हैं, इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्ना। ताज़ा मैं करूँ? जी कर लीजिए। अच्छा, इत्तखज़ू जो है वो है फेल पास्ट टेंस का, तो और इसका फाइल जो है हम है, बिल्कुल सही। और फिर आप जी बोले, मैं अभी 1 मिनट में रहिए। और फिर ईमानो हम जो है वो एक और जुमला ये फेलिया है। ये फेल मादिन है और इसका फाइल जो है अल्हम्दुलिल्लाह यू राइट अबाउट इट के हूँ है। अब अयमानहुम, ये इसका मफूल है। अच्छा अयमानहुम में आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे समिया हाँ, अयमानुहुम होगा मेरे ख्याल से। नहीं, अयमाना। ओके, ईमानो में अटैच प्रोनाउन है। अयमानहुम में बताइए आपको कितने वर्ड्स नजर आ रहे हैं और कौन कौन से वर्ड्स नजर आ रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं। 2 नजर आता हम्म, 2 नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? है, ईमान और हम। अयमाना और हुम, ठीक है सही। जी, ओके, तो अयमाना हुम, अब ये इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? ये जो है आटा ना, जो वो नाहनू तो नहीं। नहीं, वो तो शुरू में आना चाहिए ना, अयमाना और हुम। मुदाफ मुदाफ इलैह। जी, सिस्टम मुदाफ इलैह। सही करिए। ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है, और मुदाफ इलैह कौन सा स्टेटस है सलमान? रफा नसब के जर? जर, अच्छा, कैसे कह रहे हैं आप जर? क्योंकि मुदाफ इलैह जर में होता है। स्टेटस ऑफ द इदाफा फ्रैगमेंट हम हमेशा मुदाफ को देख के बताते हैं। मुदाफ का क्या स्टेटस है? नसब। नसब है, ठीक है। दिस इज फतहा की वजह से इट इज इन द नसब स्टेटस। तो अब ये इत्तखज़ू के लिए क्या बनेगा? ये तखज़ु के लिए मफूल बन जाएगा। मफूल बन जाएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको समझ में आ गया कि ये आज के लिए मफूल बन गया। जुन्नतन, अच्छा अईमान देख लेते हैं, अईमान क्या वर्ड है? ये वर्ड इसका सिंगुलर होता है यमीन। यमीन का मतलब होता है कसम। ओथ। यमीन इज द सिंगुलर, इसका मतलब होता है कसम। और अईमान क्या होता है? इसकी जमा होती है। जमा। अईमानहुम को क्या ट्रांसलेट करेंगे? दे टुक ओथ्स। देयर ओथ्स, यस, उनकी कसमें, ठीक है। जुन्नतन, जी, जुन्नतन, जन्नतन जो है समझ नहीं आया जन्नतन क्या होगा। इसका स्टेटस बताइए। इसका शायद नसब है। नसब, ठीक है। नसब अगेन जुमले में क्या बनता है? मफूल भी। ठीक, ये मफूल ही बनेगा। कभी कभी कुछ वर्ड्स के लिए हमारे 2 मफूल होते हैं जो हम पहले नहीं कर चुके हैं। ऑब्वियसली जब हम एक सूरत करते हैं तो उसमें कुछ जो है वो एडवांस कॉन्सेप्ट भी आते हैं, तो वो आएंगे तो जैसे जैसे आएंगे मैं उसको बता दिया करूंगी। ये मफूल भी ही नंबर 1 था और ये मफूल भी ही नंबर 2 है। इत्तखज़ू सर्टेन फेल होते हैं जो कि हमेशा 2 मफूल मांगते हैं, ठीक है। तो इत्तखज़ू एक ऐसा फेल है जिसको हमेशा 2 मफूल भी की जरूरत होती है। जी साजा, एक चीज मुझे थोड़ी कंफ्यूज करिए। हाँ, अत्तखज़ू या इत्तखज़ू जो है ये अनीता से स्टार्ट हो रहा है ना? ये हेल्पर अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पर अलिफ। अच्छा, ये अनीता वाला नहीं है। इत्तखज़ू है ये अगर अनीता वाला होता तो हमजा के ऊपर फतहा होता या दम्मा होता। हम जिसको पढ़ेंगे तो ये इत्तखज़ू है, तो इसके वाव एंडिंग को देख के हमें पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है और ये होम है। ठीक है। जी, चलिए इसको ट्रांसलेट करें। इत्तखज़ू लेना या बनाना। दे हैव टेकन They have made their अयमानहुम देयर ओथ्स जुन्ना। व्हाट इज जुन्ना? shields.
एस कवर शील्ड्स, ठीक है। उन्होंने अपने अपनी कस्मों को क्या बना लिया है, ढाल बना लिया है। मुनाफिकीन ने क्या किया, अपनी कस्मों को ढाल बना लिया, इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्ना। तो जैसे एक हदीस शरीफ में क्या आता है, हम शायद आप लोगों ने सुना होगा, अस्सौमु जुन्ना, के क्या है, रोजा जो है वो ढाल है। तो दिस इज द सेम वर्ड जुन्नतन, वो अपनी कस्मों को ढाल बनाते हैं। अभी इसकी जब एक साथ हम देखेंगे तो फिर बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट वन कौन करेगा, आप ही कर ले सलमान। फसद्दू अन सबीलिल्लाह। जी सादा फसद्दू जो है वो भी फा पहले बताएं क्या होगा, जी फा बताएं क्या है। फा फा हर्फ जर, फा क्या है, अभी हमने बताया था ना, कोई भी बता दे सलमान को जल्दी से कि फा क्या है। असफ, अतफ है जी, यस। अभी मैंने कहा था फा होगा, वाव होगा, सुमा होगा, तो इनको हम सब कनेक्टर्स कहेंगे, अतफ कहेंगे। सो फा इज द अतफ। स्वदू ये क्या है, ये फेल है। ठीक है, कौन सा फेल, हम हाँ पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, फेल है मादिन और द पास्ट टेंस एंड द फाइल इज हम, ठीक है। अन सबीलिल्लाह, अन सबीली इज द मफूल, अन क्या है, अन अन समझा, अन जो है फ्रॉम होगा। मुंतहा या मुबर्रा, आप में से किसी को आ रहा है तो आप बताइए। अन क्या है, हर्फ ऑफ जर, शाबाश। अन इज द हर्फ ऑफ जर। बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला, ये हर्फ ऑफ जर है। अब इसने सबीली को अन क्या बनाया, सबीली मजरूर, ठीक है, ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट हो गया। जी और सबीली और अल्लाह ही, इनका क्या कनेक्शन है, इजाफा फ्रैगमेंट, इदाफा फ्रैगमेंट है, ठीक है। ये तीनों क्योंकि आपस में कनेक्टेड है तो इनको हम एक वो कर देंगे। अन सबीलिल्लाह को एक ब्रैकेट में डाला, इस ब्रैकेट को क्या लेबल दिया, मफूल, नहीं, अन जार मजरूर जुमले में क्या बनता है, नसब तो है ही नहीं इसके पास, तो हम इसको मफूल बना ही नहीं सकते। जार मजरूर सेंटेंस में क्या बनता है, मुताल्लिक बिल फेल, मुताल्लिक, यस मुताल्लिक बनता है। जुमला इस्मिया होगा तो मुताल्लिक बिल खबर होगा, जुमला फेलिया होगा तो मुताल्लिक बिल फेल होगा। तो ये एम बी एफ बना, मुताल्लिक बिल फेल क्योंकि जुमला फेलिया। ओके, फसद्दू अन सबीलिल्लाह, ये बताइए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। साजा मुताल्लिक बिल फेल का क्या होता है? जार मजरूर अगर सेंटेंस में होता है, कोई भी जार मजरूर, तो वो सेंटेंस में मुताल्लिक बिल फेल होता है, वो फेल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। फसद्दू, बस वो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, ठीक है। So they avert people from the way of the Lord. चलिए अब ये करें, इन्नहुम साआ मा कानू यामलून। मुंतहा आप कर लीजिए, नहीं ये मैं कर देती हूँ क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं कि जो कुछ चीजें हमने नहीं की है तो वाला मैं बता देती हूँ। इन्नहुम तो ऑब्वियसली हर्फ ऑफ नसब एनएच इसम मुब्तदा बन गया, इसकी पूरी हम वो नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ों को हम नहीं कर चुके। इसको हम फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फॉर द बिगनर लेवल, ये फेल माजी है और इसका हम यस जस्ट वी लेबल इट बिकॉज साआ इट इज द पास्ट टेंस। माँ का मतलब होता है जो कि, कानून बताते कि क्या है और यामलून क्या है, बस इस तरह से हम इसको करेंगे और इन चीजों को कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। कानून बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है, नसरू वाला लग रहा है। बिल्कुल सही है। तो कानून हो जाएगा हमारा कौन सा फेल है, हम
यस فعل ماضی माजी और फाइल इसका हुम हो जाएगा और या मलून क्या हो जाएगा रफा स्टार्टिंग या मेल मलून फीमेल या मलूना या भी तो है पहले वो या क्या बता रहा है मुजारे, हाँ मुजारे ठीक है ये भी हम ये मुजारे है और ये हुम है ठीक है बस इसका मैं आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं जो अभी हमने नहीं की इंशाल्लाह थोड़ी दिनों में कर लेंगे इसके इंडीड इट इज evil that they were doing indeed it is evil साआ का मतलब है evil माकानु या अमलून that they were doing बेशक ये बुरा है जो वो करते थे उस्ताजा माँ का मतलब व्हाट नहीं होता हाँ जो जी माहाजा जी जी जो वो करते हैं या व्हाट तो वो शील्ड वाली मुझे बात नहीं समझ में आई। दे हैव मेड देयर ओथ एज शील्ड, तो वो यानी कसम खा रहे हैं ताकि लोग समझें कि वो मुसलमान हैं। हाँ और हाँ मैं ये उनको बता रही हूँ protection- सिस्टर मदीहा हम एक साथ इसको कर रहे हैं ना अभी बता रही हूँ ये अभी इस पे नहीं आए जी। मैं अभी बता रही हूँ इत्तखज़ु अयमानुहुम जुन्ना they have made their false oaths as shields उन्होंने बना ली हैं अपनी कस्मों को अपने लिए ढाल फसद्दू अन सबीलिल्लाह बस वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं hindering others from the way of Allah subhanahu wa ta'ala इन्नहुम साआ मा कानू यामलून बेशक के बुरा है जो वो करते हैं इंडीड इट इज evil what they do ठीक है अब इसको देखते हैं कि क्या वो अपने उसको जो सिस्टम मदीहा पूछ रही हैं कि वो अपनी कस्मों को अपने लिए ढाल बना लेते हैं तो ढाल बनाने का क्या मतलब है ढाल बनाने का मतलब ये है कि अपनी झूठी अभी हमने कहा ना कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है तो ये इनकी झूठी कस्में हैं ये कस्में खा खा कर अपने सच्चे मुसलमान होने का या मुसलमानों के खैर ख्वाह होने का जो है वो एतराफ़ करते थे किस तरह झूठी कस्में खाते थे कि हम तो आपके साथ हैं हम तो आपके खैर ख्वाह हैं हम तो दिल से जो है वो रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं तो ये उनकी झूठी कस्में थी अब वो ऐसी झूठी कस्में क्यों खाते थे इसीलिए खाते थे क्योंकि वो मुसलमानों के साथ रह सकें और उन पर कोई शक ना करे कि ये लोग जो है वो मुनाफिक हैं या ये लोग हमारे दुश्मन हैं ठीक है क्योंकि अगर ये बात पता चल जाती तो फिर क्या होता कि एक तो दुनियावी फायदे से वो महरूम हो जाते कि मुसलमान जब जंगों में जा रहे हैं और वहां से उनको माल गनीमत मिल रहा है तो उस माल गनीमत में इन मुनाफिकीन को हिस्सा नहीं मिलता ठीक है और दूसरा उनका क्या नुकसान होता कि जब पता चल जाता कि ये मुनाफिक है तो फिर उनके खिलाफ भी कोई इक़दाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे है ना या एटलीस्ट इतना ही होता कि मुसलमान और जो है वो उनसे केयरफुल हो जाते और अपनी सीक्रेट बातें उनके सामने नहीं करते क्योंकि देखिए आम मुसलमानों को इस बारे में पता नहीं था कि कौन मुनाफिक है और कौन पक्का मुसलमान ठीक है दे वर जस्ट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि कौन मुनाफिक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दूसरों पर बताया नहीं या जाहिर नहीं किया कि कौन मुनाफिक है सिर्फ जो है एक मौके पर क्या हुआ था कि हजरत हुज़ैफा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बता दिया था कि कौन मुनाफिक है ये बैटल ऑफ तबूक से वापसी पर इसके अलावा और किसी को भी पता नहीं था अच्छा फिर कभी कभार क्या होता था कि बाद में जो है वो हुक्म आ गया था अब्दुल्ला बिन उबई का जब इंतकाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई उस पर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही भेजी और ये हुक्म आ गया कि अब आप जो है वो किसी भी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते थे ना कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया था और उसकी हरकतें भी इतनी थी उसने इतने प्लॉटिंग एंड प्लानिंग की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी दफ़ा तकलीफ दी कि इट वाज एविडेंट कि वो मुनाफिक ही है लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई बाकियों को नहीं बताता उसका सीक्रेट रखने के लिए सबसे हाँ इन अ वे ऑल्सो सबसे पहले ये बात थी कि उसकी नमाज जनाजा इसलिए पढ़ाई
کیونکہ ان کے جو بیٹے تھے نا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ بن ابی، تو وہ بہت سچے مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. تو وہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے ریکویسٹ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ کو آنر کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ نماز پڑھا دیتا ہوں. اوکے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم نیکسٹ آیا کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد باقی منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی آپ سے؟ ہاں جی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو جب جنازہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو نہیں پڑھاتے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ شخص جو مر گیا یہ منافق ہے. ٹھیک ہے، بس یہیں پر ہم ختم کر لیتے ہیں کیونکہ اوبیسلی پھر جب ہم جاتے ہیں آیت کے اندر تو اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے، تو یہ آپ لوگ خود کر لیجیے گا. جی، سا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سا برا، ایول. گناہ. اچھا، اسی طرح سے جیسے میں نے آج کرایا ہے آپ لوگ پلیز کرنے کی کوشش کیجیے. آیا نمبر 3، 4 and 5 یہ آپ لوگ خود سے اٹینڈ کر لیجیے گا انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ویک ہم لوگ اس کو مل کے اعراب کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے. استاذہ آپ نے کون سی آیات بولی ہے؟ 3، 4 and 5. جی 3، 4 and 5. تو اسی طرح سے جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، دوبارہ سے یہ اذا آ رہا ہے یہ وہی ہے، ظرفیہ، اس کو صرف مارک کر دیجیے گا. اور ایتہم، پھر جو بھی آپ کو کلاس میں کر لیں گے نا. ہاں کلاس میں کریں گے نا، لیکن آپ اگر پہلے سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو کون سا کانسیپٹ کلیئر ہے اور کون سا کانسیپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہے. جی استاذہ. کی ٹرانسلیشن دیکھیے، خود سے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے اور پھر اس کے بعد جیسے آج میں نے کروایا انشاءاللہ ایک ایک آیت ہم اسی طرح سے کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.